تمہارے دل میں نبی کا خیال ہے کہ نہیں؟ سبھی سوالوں سے اچھا سوال ہے کہ نہیں؟ تمہارے دل میں نبی کا خیال ہے کہ نہیں؟ سبھی سوالوں سے اچھا سوال ہے کہ نہیں؟ اے بچوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، حکم نہیں دیتا ہوں، آپ یہاں آ جائیں۔ آپ ابھی سوال نہیں سمجھ پا رہے ہیں، یہاں آئیں گے سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ آ جائیں، مسجد کے گیٹ کو چھوڑ دیں، کسی اور مخلوق کے جانے کے لیے راستہ چھوڑ دیں۔ آ جائیں، ادھر بیٹھو یار، ادھر آ کے بیٹھو، سامنے آ جائیں۔ ادھر جگہ ہے۔ تمہارے دل میں نبی کا خیال ہے کہ نہیں؟ سبھی سوالوں سے اچھا سوال ہے کہ نہیں؟ سبھی سوالوں سے اچھا سوال ہے کہ نہیں؟ سنا ہے میلہ لگا ہے حسین لوگوں کا، چلو تو دیکھیں نبی کا بلال ہے کہ نہیں؟ چلو تو دیکھیں نبی کا بلال ہے کہ نہیں؟ شب معراج میں جو دیکھا آپ نے موسیٰ، بتائیں میرا نبی بے مثال ہے کہ نہیں؟ بتائیں میرا نبی بے مثال ہے کہ نہیں؟ بے مثال ہے کہ نہیں؟ اور مزار صابر کلیر پہ آج بھی دیکھو، خدا کے نور کا حسن و جمال ہے کہ نہیں؟ خدا کے نور کا حسن و جمال ہے کہ نہیں؟ اور اشارہ پاتے ہی کوزے میں آ گیا ساگر، اشارہ پاتے ہی کوزے میں آ گیا ساگر۔ یہ میرے خواجہ کا آنا کمال ہے کہ نہیں؟ یہ میرے خواجہ کا آنا کمال ہے کہ نہیں؟ اب آپ بیدار ہو جائیے، ایک اچھی تقریر سننے کے لیے تیار ہو جائیے، جن سے میرا ابھی پرائے فہم و فراست کے پارلیامنٹ، تحقیق و تدقیق کے دار السلطنت، حسن و جمال کا تاج محل، فضل و کمال کے لال قلعہ، عقل و دانائی کے جامع مسجد، مسائل شرعیہ کے جنرل نالج، جود و سخا کے صدر بازار، عظمت و رفعت کا قطب مینار، حضرت علامہ مولانا مفتی شکیل صاحب قبلہ بلند شہر یو پی کی آمد ہو رہی ہے۔ حضرت کا ویلکم، سواگتم، خیر مقدم نعرہ تکبیر سے کر لیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن غوث الورا، زندہ باد، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، فکر و فن کی چاک چادر کو رفو کر جائیے، فکر و فن کی چاک چادر کو رفو کر جائیے، جیسے کرتے تھے اکابر ہو بہو کر جائیے، جن کے جملے میں پوشیدہ ہو نیا ایک انقلاب ہے، گزارش آج ایسی گفتگو کر جائیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ منبر پروقار فضل وگر ہماری جماعت کی ذمہ دار شخصیات، آپ کی یہ چاہ باغ کا سلسلہ میں شروع کرنا، چائے مت لانا، بعد میں اپنی مسجد کے خلیف و امام صاحب میرے دیرینہ رفیق جلالت العلم پیش رو مقدر، مطلب ماننے کو تیار نہیں ہو لے جا یار، سن لے جا۔ چائے والے آپ جو ہے پیچھے نکل جائیں، پیچھے والے ان لوگوں کو چائے پلائیں۔ میرے دیرینہ رفیق جلالت العلم پیشرو مقدر حضرت مولانا فاروق رضا صاحب اور چھوٹے سے قد کا آدمی صوفی وقت
मगर काम करने की मशीन। सूफी मोहम्मद जाकिर साहब गुजरात से आए हुए शायर साहब, जिनकी भी आपने बात सुनी। प्यारे इस्लामी भाइयों, बिला वजह की आपस में गुफ्तगू करने वाली मेरी माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अबाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीमुल करीम। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलुल्लाह अल बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला या वाफ़े करबो बला, गुलरुखा शहजादा गुलबो कला। या इमाम आला हजरत, या शहे अहमद रज़ा, मुफ्ती आज़म जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे, काबा इमा मददे, वगिरदाद बला उस्ताद कश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। आपका जैसे मन चाहे। इन औरतों से को थोड़ा आहिस्ता बोले। जैसे आपका दिल चाहे, जोर से या आहिस्ता से अपने आका को याद करके दुरूद पाक पढ़ लीजिए। जाग बंदे शरअ के अतवार के साए तले। जाग बंदे शरअ के अतवार के साए तले, ताके मर के सोए रब के प्यार के साए तले। और हो गया अल्लाह राजी, इसलिए उनके गुलाम। हो गया अल्लाह राजी, इसलिए उनके गुलाम। मुस्कुरा उठे सलीबो तार के साए तले। और कैसे आशिक थे खुदा के और रसूल पाक के। कैसे आशिक थे खुदा के और रसूल पाक के, जो नमाजें पढ़ गए तलवार के साए तले। जो नमाजें पढ़ गए तलवार के साए तले। और गर्दिशे दौरान शिकायत उनसे कर दूंगा तेरी। यहाँ तो कोई सुन नहीं रहा है ना। तो गर्दिशे दौरान शिकायत उनसे कर दूंगा तेरी, पहुँचने दे गुंबदो मीनार के। पहुँचने दे गुंबदो मीनार के साए तले। और बख्शवा दीजिए खुदा से, बख्शवा दीजिए खुदा से, घुट रहा है दम मेरा मेरे आका जुर्म के अंबार के साए तले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार दिल से कलमाए तैयबा भी पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। घबराइएगा बिल्कुल मत। मैंने घड़ी देख ली, 12:30 बज गया। तकरीबन 1 घंटा में आपकी खिदमत करूंगा। सुभान अल्लाह।
बुढ़ा हो गया हूँ तो आवाज में घनघरज नहीं है, चीख नहीं पाऊंगा, चिल्ला नहीं पाऊंगा। मकसद मेरी पूरी तकरीर में एक भी चौका एक भी छक्का नहीं लगेगा। अलबत्ता कभी अगर जरूरत पड़ गई तो जमीन से चिपकती हुई बाउंड्री लगाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है क्लासिकल बैट्समैन वही कहलाते हैं जो जमीन से चिपकती हुई बाउंड्री लगाते हैं, उछाल के नहीं मारते हैं, उसमें लपकने का खतरा, कैच हो जाने का खतरा बना। तो मैं बात यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को पैदा फरमाया। अब तक 18,000 अक़साम की मखलूक़ात दुनिया वालों ने तलाश कर ली। इन तमाम मखलूक़ात में सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे बेहतर अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा फरमाया। हालांकि इससे ज्यादा ताकतवर और मखलूक़ात भी उसकी हैं, जैसे शेर दहाड़ दे तो आदमी का पित्ता पानी हो जाए, नजर आ जाए तो आदमी घबरा के छुप जाए, मगर वो भी 4 पैरों पे खड़ा है। हाथी कितने बड़े जिस्म का मालिक, अगर किसी पे पैर रख दे तो जमीन में धंसा दे, और सूंड मारे तो कई को लपेट दे। हालांकि वो सूंड हम कहते हैं, असल में वो हाथी की नाक है, है ना? इतने बड़े जिस्म का था तो वो जमीन से घास चर नहीं सकता था। अल्लाह ने उसके खान पान के लिए उसकी नाक इतनी लंबी कर दी कि उससे पानी भी पी सके और उसके जरिए खा भी सके। असल में वो उसकी नाक है, मगर वो भी 4 पैरों पे खड़ा है। मगर ये नर्मो नाजुक सी मखलूक, नहीं वो लागर सी मखलूक जिसे इंसान कहते हैं, अल्लाह ने उसे 2 पैरों पर खड़े होने का एजाज बख्शा। पीछे बच्चे हट यहाँ से। क्यों? इसलिए कि 4 पैरों पर चलने वाली मखलूक सर उठा के नहीं चल सकती, सीना तान के नहीं चल सकती। अल्लाह ने इंसान को 2 पैरों पर इसलिए खड़ा किया ताकि वो कुफ्र के सामने सरबलंदी की जिंदगी भी गुजार सके और सीना तान के भी अपनी जिंदगी गुजार सके। सुभान अल्लाह, है ना? और कुरान में इरशाद फरमाया रब्बे कदीर ने, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को सबसे ज्यादा अच्छी वज़ाक़ता में पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। तो इसकी कुछ जिम्मेदारियां भी बनती हैं। जिसके रुतबे हैं सिवा, उसको सिवा मुश्किल है। तुझे आला बनाया है तो तेरी जिम्मेदारियां भी आला हैं। जिम्मेदारी क्या है? अल्लाह ने जो अपने महबूब के जरिए दीन इस्लाम अता किया, उसे सीखे और अमल करे, और उसके बाद दुनिया के कोने कोने तक जाके इस्लाम की तबलीग का सिलसिला शुरू करे। बेशक, सुभान अल्लाह। और यही वजह है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में इस्लाम जजीरतुल अरब से बाहर नहीं आया, मगर सरकार की जो आखिरी तकरीर थी जिसमें 1,40,000 सामीन थे, मैदान था अरफात का,
मौसम था हज का, हज्जतुल वदा के मौके पर सरकार ने खिताब फरमाया, जो यहाँ मौजूद हैं मेरी बातों को गौर से सुने और जो मौजूद नहीं हैं उन तक पहुंचा दें। सुभान अल्लाह। उन्होंने सरकार की इन बातों को गांठ बांधा और सरकार के विसाले पुरमलाल के बाद मक्के और मदीने की गलियों से निकले और दुनिया के कोने कोने तक इस्लाम पहुंचाने का काम किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हैरत में पड़ जाएंगे जब मैं कश्मीर के उस सेक्टर में गया जिसे लद्दाख कहते हैं, दुर्गम पहाड़ियां, पेचीदा रास्ते, उन रास्तों पर न कार चल सकती है न मोटरसाइकिल। हमने तकरीबन 10 किलोमीटर का सफर खच्चरों पर बैठ के किया। जब हम शहर में पहुंचे तो मस्जिद के बुलंद मीनारे देखे, उन मीनारों से अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम हैरत में पड़े कि यहाँ तो रास्ते भी नहीं है, यहाँ इस्लाम कौन लेके आया, यहाँ अजानें कैसे आ गई, यहाँ कुरान की तिलावत कैसे पहुंची। तो जहन पे थोड़ा सा जोर दिया, बात समझ में आ गई कि यहाँ इस्लाम वही लेके आए थे कि जिन्होंने पैगंबर इस्लाम की गुलामी का पट्टा गले में डाला हुआ था, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन्होंने इश्क़ मुस्तफा का जाम पिया हुआ था, सुभान अल्लाह। वही दुनिया के कोने कोने तक बगैर किसी खौफो खतरे के पहुंच गए और इस्लाम का उजाला लोगों तक पहुंचाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ किस्सा सुनाए आपको, और आपके हुंकारे चाहिएंगे उस किस्से में। सुभान अल्लाह। हुंकारे इसलिए कि सुभान अल्लाह बोलेंगे तो सवाब भी मिल जाएगा और नींद भी नहीं नजर के आएगी। बोलिए सुभान अल्लाह। रहेगा कि आप जाग रहे हैं और जागतों में तबलीग हो जाए तो मजा आ जाए। सुभान अल्लाह। एक शख्स मदीने की गली से निकले और सफर करते करते, तिजारत करते करते, इस्लाम की तबलीग करते करते चीन पहुंच गए, सुभान अल्लाह, चाइना पहुंच सुभान गए। अल्लाह, सुभान अल्लाह। तिजारत इसलिए की कि भीख ना मांगना पड़े, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, पेट का पालन पोषण हो जाए और अपनी सही जिम्मेदारी निभाई इसलिए कि अल्लाह की जमीन पे अल्लाह वालों की हुकूमत कायम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहुंचे, वहां जब पहुंचे तो वहां की जबान, वहां की लैंग्वेज बड़ी टेढ़ी मेढ़ी, समझ में ना आए, मेरी बात उनकी समझ में ना आए, उनकी बात मेरी समझ में ना आए, तो मैं तबलीग कैसे करूं। मगर हौसला नहीं तोड़ा, हिम्मत नहीं हारी, वहीं टिक गए। थोड़ी बहुत तिजारत करते थे ताकि रोटी पानी का इंतजाम हो जाए और उन्हीं से उनकी जबान सीखते थे। जब जबान सीख गए तो अब ख्याल आया कि अब इस्लाम की तबलीग की जाए, अब मोहम्मद अरबी का पैगाम पहुंचाया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान कहां से शुरू करें, गली मोहल्ले से कर दें, एक एक दरवाजा खटखटाएं, बोले फिर वक्त बहुत लगेगा, उम्र गुजर जाएगी और काम बड़ा नहीं हो पाएगा। जहन में ये बात आ गई कि क्यों ना बादशाह के दरबार में चले, क्यों ना यहाँ के राजा को इस्लाम का पाठ पढ़ाएं। अगर यहाँ का राजा इस्लाम कबूल कर लेगा तो फिर रियाया भी कबूल कर लेगी। बेखतर पहुंच गए दरबार में, दरबार सजा हुआ था, मुकदमा सुने जा रहे थे। पहुंचे और बोले कि राजा, मैं मुल्क के अरब के शहर मदीना से आया हूं और तेरे लिए इस्लाम की रोशनी लेके आया हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने पलट के देखा कि यार ये कौन पागल आ गया,
पागल ही इतनी जुर्रत कर सकता है? वो हुक्म दिया इसे धक्के दे के बाहर निकालो, धक्के दे के बाहर निकाल दिए गए। थोड़ी देर गुजरी थी, फिर पलट के आ गए, कहा तू मुझे धक्के दे के निकालता है, तुझे मालूम है इसी तेरे तख्त पर न जाने कितने लोग बैठ के मर गए मिट गए, उन्हें कोई पूछता नहीं है। मैं जिस रोशनी की बात करने आया हूं तेरे सामने, इस रोशनी में पलने और बढ़ने वाला जब तक इस दुनिया में रहता है तो लोगों के सरों पे हुकूमत करता है, और जब दुनिया से चला जाता है तो फिर लोगों के दिलों पे हुकूमत करता है। बोले वो क्या रोशनी है? बोले रोशनी है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बोले ये कोई मुकम्मल पागल है, उसने अपने कमांडोज को हुक्म दिया ऐसा करो, इसे उठाओ, अब रास्ते में मत छोड़ देना, इसे जेल की सलाखों के पीछे डालो। हुक्म की तामील हो गई, जेल में पहुंच गए। अकेले थोड़े ही थे, जेल में तो और भी कैदी होते हैं। उन कैदियों में रहे, एक दिन ही सुस्त रहे, दूसरे दिन फिर अपनी जिम्मेदारी निभाना शुरू की। दरबार में शुरू किया था, अब कैद खाने में शुरू कर दिया। वहां लोगों की समझ में इस्लाम आने लगा। अच्छा, इस्लाम ऐसी रोशनी है कि वो समझ में आई जाती है। इस्लाम वो मजहब है कि अगर उसकी सही तबलीग हो जाए, बड़े से बड़ा कट्टर दिल पिघल ही जाता है। मेरे इस्लामी भाइयों, वो रहे 20 साल कैद खाने में, और 20 साल के बाद जब वो बादशाह मरा और उसका आखिरी क्रियाक्रम हो गया और दूसरे बादशाह की ताजपोशी हुई, तो उसने खुशी में ऐलान किया जितने कैदी हैं रिहा कर दिए जाएं। तो सब कैदी रिहा कर दिए गए। जो कभी अकेला गया था वो अकेला कैद खाने से मुंह लटका के आ रहा था, मगर मुस्तफा का दीवाना आज से 20 साल पहले तन्हा कैद खाने में गया था, और जब बाहर आ रहा था तो 20,000 गुलामे मुस्तफा अपने साथ लेके आ रहा था, इसलिए कि उसे अपनी हमें कौन सी बात अच्छी लगती है? हम नारे किस चीज पे लगाते हैं? अभी देखो, अभी मैं एक बात कहूंगा, अभी नारे लगेंगे, अभी आप उछलेंगे, अभी आप कूदेंगे, और मौका लगेगा तो जेब में भी हाथ डाल लेंगे। मेरे भाई, वो कौन सी बात अच्छी लगती है कि वो ख्वाजा साहब ने बे कल्लू खां पूछ ले आजा था। ओए वापस मत हटो, इधर इधर आके बैठ, नीचे बैठो। दांत फाड़ रहा है। वो बात ये है कि मैं अभी आपसे कहूंगा कि वो अपने ख्वाजा साहब है ना, जिनका मदारे पाक, जिनका रोजा अजमेर में है, वो आए थे आज से 900 बरस पहले, और उन्होंने पूरा अना सागर एक प्याले में मंगा लिया था। भाई लग गए नारे, भाई मग गया शोर। ये छोटी बातें हैं, ये बहुत गौनी बातें हैं। मेरे भाई, जब वो अल्लाह के वली हैं तो अना सागर तो बेचता क्या है? वो चाहते तो समंदर कूदे में आ जाता, मगर वो अना सागर को प्याले में मंगाने के लिए नहीं आए थे, वो पत्थरों को उछालने के लिए नहीं आए थे। वो मेरे इस्लामी भाइयों, वो हजारों मील का सफर करके अल्लाह की जमीन पे इस्लाम की तबलीग करने के लिए आए थे, और उन्होंने यही कारनामा अंजाम दिया। 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा के गुलाम मुस्तफा बनाया। असल काम ये है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। ये बात समझने की है कि हम आए क्यों हैं। हम इसलिए आए हैं कि हम जब तक इस दुनिया में रहें, अपनी इस्लामी जिम्मेदारी निभाते रहें। हमें रास्ते तलाश करने की जरूरत नहीं है, रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। हमें प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला असबाब पैदा कर ही देता है।
हमें तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाना है। ताकत भी वही अता फरमाता है। वो अरब के बुद्धू थे, उन्हें कौन जानता था, उन्हें कौन पहचानता था, मगर आलम ये कि जब वो गुलाम मुस्तफा बने, इश्क मुस्तफा का जाम पिया, तो वो मक्के और मदीने की गलियों से निकले तो उन्होंने बहते दरिया रोक दिए, उन्होंने रेतदारों पर कश्तियां चला दी, हवा के दोष पे मुसल्ले बिछा दिए, समुद्रों की लहरों पे घोड़े दौड़ा। मगर कमाल क्या था? ये उनका अपना कमाल नहीं था, ये सब कमाल गुलामी मुस्तफा ही का। सुभान अल्लाह। मैं बताऊं आपको कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बार मस्जिद नबी के दरवाजे पे खड़े हैं, सामने हजरत उमर फारूक आजम खड़े हैं। आंखें मिली तो सरकार ने इशारे से हजरत उमर को अपने करीब बुलाया, हाथ का इशारा किया। हजरत उमर सरकार की बारगाह में हाजिर हो गए और एक लम्हे के लिए सरकार के रुए ज़ेबा पर नजर डाली, यानी चेहरे पर नजर डाली, फिर गर्दन झुकाई, फिर हाथ बांधे और अदब से सरकार की बारगाह में खड़े हो गए। आप ताज्जुब करते होंगे कि वो सरकार का रुए ज़ेबा ऐसा लगे कि इसमें सूरज गर्दिश कर रहा है, ऐसा लगे कि 14वीं रात का चांद दामन फैलाकर अपने हुस्न की भीख मांग रहा हो। ये तो मैंने छोटी बात बोल दी आपसे, नहीं, सरकार का रुए ज़ेबा तो बड़ी बात है। चांद उसके सामने बेचता क्या है, उसकी औकात क्या है। अगर 14वीं रात का चांद सरकार का तलवा देख ले तो इतना शर्माए कि सुकड़ के तारा हो जाए। वो है मेरे मुस्तफा। तभी तो बरेली के आला हजरत ने ऐसे इरशाद फरमाया कि खुर्शीद था किस जोर पर, खुर्शीद सूरज को कहते हैं, खुर्शीद था किस जोर पर, क्या पढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब ये रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। और कुमरी ने, बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जाफदा, हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। ये है मेरे मुस्तफा। वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और हजरात, किसी खूबसूरत चीज को तो मुड़ मुड़ के देखा जाता है, टिकटिकी बांध के देखा जाता है, मगर हजरत उमर है कि एक लम्हे के लिए देखते हैं। कोई वजह तो होगी, क्योंकि बड़ों के काम में वजह होती हैं, हिकमतें होती हैं। फेलुल हकीम लाए अकलू अनिल हिकमा, हकीम का फेल, हकीम का कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता है। तो हजरत उमर गर्दन झुका के क्यों खड़े हैं मेरे भाई? उसमें एक वजह यह है कि आज भी अच्छे घरों में पलने वाली औलाद, अच्छे समाज में कनीज़े फातिमा की गोद में पलने वाली औलाद बाप से नजरें मिला के बात नहीं करती है। बोलो करती है? अगर करती है तो समाज वाले कहते हैं कि बड़ा बेअदब है कि बाप से नजरें मिला के बात कर रहा है। मेरे भाई, जब मजहब इस्लाम में बाप का इतना अदब है तो बताओ पैगंबर इस्लाम का कितना अदब होगा। इसलिए हजरत उमर गर्दन झुका के सरकार की बारगाह में खड़े हैं। मेरे भाई, सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उमर, हमने तुम्हें आज एक खास बात के लिए बुलाया है, खास काम के लिए बुलाया है। अर्ज की या रसूलल्लाह, हुक्म फरमाएं। तो सरकार ने फरमाया, उमर, एक दिन वो भी आएगा कि तुम्हारी रूह तुम्हारे तपस्से उनसरी से, तुम्हारे बॉडी से, तुम्हारे स्ट्रक्चर से निकल जाएगी, परवाज कर जाएगी, उड़ जाएगी। और जैसे ही रूह निकलेगी तो तुम्हारे ही घर वाले, तुम्हारे ही पड़ोसी, तुम्हारे ही रिश्तेदार, तुम्हारे ही अजीज व अकारिब तुम्हारे कपड़े उतार लेंगे, फिर तुम्हें तख्ते पे लेटाया जाएगा, फिर तुम्हें नहला देंगे, फिर तुम्हें चंद कपड़ों में लपेटेंगे, यानी कि तुम्हें कफनाया जाएगा, और फिर उठाएंगे कांधे पर, और कांधे पे उठा के तुम्हें 2 गज जमीन में तन्हा छोड़कर वापस आ जाएंगे।
اور جیسے ہی وہ واپس آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو مقرر کردہ فرشتے، جن میں سے ایک کا نام منکر ہے اور دوسرے کا نکیر ہے، ان کی ایک ایک آنکھ ایک ایک دیگ کی برابر ہے، مشال کی طرح جل رہی ہے، لمبے لمبے بال، لمبے لمبے ناخن زمین کو چیرتے پھاڑتے ہوئے آئیں گے، اور عمر تم سے سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے اور تم ہوگے اکیلے۔ بولو ایسے عالم میں کیا کرو گے؟ جب سرکار کی زبان سے قبر کا منظر نامہ حضرت عمر نے سنا تو ماتھے پہ لکیریں پڑ گئیں، چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ میرے بھائی، میں ان عمر کی بات کر رہا ہوں کہ جو کسی مرحلے میں کبھی گھبرائے نہیں، کبھی بے چینی نہیں ہوئے، کبھی ماتھے پر لکیریں نہیں پڑی، کبھی چہرے کا رنگ بدلا ہی نہیں، اور مگر قبر کا منظر نامہ سنا تو ماتھے پہ لکیریں پڑ گئی، چہرے کا رنگ پھیکا پڑنے لگا۔ میرے بھائی، اس کی وجہ بھی ہے، کیونکہ آدمی 5 مراحل سے گزرتا ہے، 5 مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ وہ ہے کہ جب جسم نہیں تھے، صرف روحیں تھیں۔ قرآن اسے یوم الستو کے نام سے یاد کرتا ہے۔ قرآن میں رب قدیر نے ارشاد فرمایا کہ جب اس نے روحیں پیدا کی تو تمام روحوں سے خطاب کیا پروردگار نے، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے کہا قالو بلا، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو ایک مرحلہ تو وہ ہے جب جسم نہیں تھے، دوسرا مرحلہ ہے شکم مادر کا، ماں کے پیٹ کا، اور تیسرے مرحلے میں ہم اور آپ ہیں، چوتھا مرحلہ قبر کا ہے، اور 5واں مرحلہ حشر کے میدان کا ہے۔ وہ بھی مشکل مرحلہ ہے۔ سورج سبا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہو جائے گی، نفسی نفسی کے نعرے ہوں گے، اللہ تش کا شور ہوگا، مگر وہاں کوئی اکیلے تھوڑے ہوں گے، وہاں تو ہم بھی ہوں گے، آپ بھی ہوں گے، وہاں تو سبھی ہوں گے، وہاں تو حضرت آدم سے لے کے ایدم تک اور جتنے قیامت تک پیدا ہوں گے سب اکٹھے ہوں گے۔ کوئی میں ہی تھوڑے ڈوب رہا ہوں گا، پڑوسی بھی تو ڈوب رہا ہے، تو دل کو تسلی آ جاتی ہے۔ بڑی بڑی تکلیف میں اسپتال میں ہم نے لوگ دیکھے ہیں، آدمی چیخا مگر جیسے ہی گردن گھمائی تو دوسرے بیڈ پہ بھی چیخ رہا ہے، تو دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ میں ہی تھوڑا ہی ہوں، اور بھی تو ہیں میرے بھائی۔ مگر قبر میں تنہائی ہوگی، اکیلا پن ہوگا، اس لیے سب سے مشکل مرحلہ قبر ہی کا ہے۔ مگر ہم نے تو اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، قبرستان میں بھی لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھا ہے، بزنس پہ ڈسکس کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ارے ہنسنے والوں قبرستان میں کبھی قبر میں جھانک کے بھی دیکھ لیا کرو، اس کی گہرائی دیکھو، اور اس کے کونے میں ذرا ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا، کہیں دینار نظر آئے تو بتانا، کہیں ریال نظر آئے تو بتانا، کہیں روپیے کی گڈی نظر آئے تو بتانا، کوئی روزن دان نظر آئے تو بتانا، کوئی ٹکا نظر آئے تو بتانا، کوئی بلب نظر آئے تو بتانا۔ یہ اس لیے وہاں نہیں ہوگا کہ وہاں نہ روزن دان کام آئے گا، نہ وہاں ٹکا کام آئے گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت اللہ مولانا مفتی شفیع عالم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ بیٹھ جائیے، سبھی حضرت بیٹھ جائیے۔ ہمارے دو بزرگ، سبحان اللہ، حافظہ حضرت اللہ مولانا غلام ربانی صاحب، غور ربانی صاحب، دو بزرگ ہمارے ممبر پر تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ بولو گھبرا تو نہیں رہو آپ کو ایک ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھنا اور سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کرنا میرے اسلامی بھائیوں۔ تو وہاں یہ تمام چیزیں، نہ ہمارا روپیے کی گڈی ہے، نہ ہمارا ٹکا ہے، نہ ہمارا ریال ہے، نہ ہمارا دینار ہے، نہ کوئی کنکمہ ہے، نہ کوئی بلب ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ وہاں ان میں سے کچھ بھی کام آئے گا ہی نہیں۔ قبر میں اگر کام آئے گا تو لا الہ الا اللہ کے جلوے کام آئیں گے، قبر میں اگر کچھ کام آئے گا تو محمد رسول اللہ کی محبت کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ ہندوستان، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر۔ تو اب میں خاص بات کی طرف آ رہا ہوں میرے بھائی۔ حضرت عمر فاروق اعظم جیسی شخصیت کہ جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا عمر تم تو جنتی ہو
मगर कब्र का नाम सुना, मंजरनामा सुना तो माथे पे लकीरें पड़ी, चेहरे का रंग फीका पड़ा। मेरे भाई, मेरे इस्लामी भाइयों, मैं उन उम्र की बात कर रहा हूँ कि जो कभी घबराए नहीं, कभी बेचैन नहीं हुए। आपको शायद मालूम हो, अगर अपने आपने तारीफ पढ़ी हो, हजरत उमर ने जब कलमा पढ़ा था तो जवान थे और मक्के के हालात बिल्कुल अच्छे नहीं थे। मक्के के हालात ये थे कि छुप के नमाजें पढ़ी जाती थी, आहिस्ता आहिस्ता कुरान की तिलावत की जाती थी। तभी तो ये जोहर की नमाज और असर की नमाज में कुरान जोर से नहीं पढ़ा जाता, यानी जहरी तिलावत नहीं होती है। इमाम साहब आहिस्ता आहिस्ता तिलावत करते हैं। जानते हो, मक्के के मुशरिकीन का आलम ये था कि इन वक्तों में पागल होकर घूमते रहते थे कि जिस घर से कुरान की आवाज आ जाए उस घर को जला दो, और वो जो पढ़ने वाले उन्हें कुचल डालो, नेदे फालों से कोट डालो, आग में जला डालो। सरकार ने फरमाया चलो कोई बात नहीं है, ये तलाश करते फिरते हैं, इन वक्तों में कुरान की तिलावत आहिस्ता आहिस्ता कर लिया करो। मगरिब में शराब के नशे में धुत हो जाते हैं, इशा में उठ नहीं पाते, फजर में भी नहीं उठ पाते हैं, तो इन वक्तों में जहरी तिलावत कर लिया करो। अब हजरत उमर ने कलमा पढ़ा और हजरत उमर जब जोहर की नमाज में शरीक हुए तो कुरान की तिलावत आहिस्ता की गई। अब नमाज मुकम्मल हुई तो अर्ज किया, रसूल अल्लाह क्या हम हक पर नहीं है? तो सरकार ने फरमाया, उमर हमारी और तुम्हारी टोली ही तो इस वक्त हक पर है, और कोई पूरे जमीन पे हक पे है ही नहीं। तो हजरत उमर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह फिर ये छुप के नमाजें क्यों पढ़ी जा रही हैं, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता कुरान की तिलावत क्यों हो रही है? अब अरब के दबंग ने कलमा पढ़ लिया है, अब मक्के के सूरमा ने आपके दामन से वाबस्तगी हासिल कर लिए, अब छुप के कुछ नहीं होगा। खाना काबा की तबलीग से इल्लल्लाह के नारे गूंजेंगे, वही कुरान की तिलावत की जाएगी, खुले में नमाज अदा की जाएगी। मैं तनहा उमर अबू जहल से भी निपट लूंगा और उसकी टोली से भी निपट लूंगा। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह। मगर कब्र के बारे में सुना तो बेचैन हुए। मैं उन उमर की बात कर रहा हूँ कि उमर का नाम अगर शैतान सुन ले गली बदल देता है ना, मैदान छोड़ कर भाग जाता है। मगर कब्र का मंजरनामा सुना तो माथे पे लकीरें पड़ी। मगर हजरात थोड़ा तसल्ली से आप बैठिए तो सुनिए, थोड़ी देर में ही हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के माथे की लकीरें गायब होने लगी और चेहरे का रंग वापस आने लगा। उसकी वजह जानते हो? वजह है ये कि वो अच्छी सोहबत में रहते थे, सरकार की सोहबत में दोस्ती थी सरकार से। अब दोस्ती का दौर तो यहाँ भी है, अपने लड़के भी दोस्ती कर रहे हैं और खूब दोस्तियां हो रही हैं। दोस्ती करो, मगर तुम्हें मशवरा दे रहा हूँ कि दोस्ती चाहे कितनी ही करीबी क्यों ना हो, कितनी ही करनी क्यों ना हो, मगर वो घर के बैठक तक ही होना चाहिए, घर के बेडरूम तक नहीं, ड्राइंग रूम तक चलेगी, मगर अंदर जनान खाने में नहीं। मगर यहाँ तो थोड़ी दोस्ती होती है, पहले बेडरूम, पहले ड्राइंग रूम में, उसके बाद बेडरूम में और फिर किचन तक हो जाती है। ये गलत है, मजहब इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। जब कोई गैर महरम अंदर आएगा, हो सकता है उसकी नजर बदल जाए और हो सकता है कोई घपला हो जाए और इज्जत का जनाजा निकल जाए, फिर सीना कूटने के अलावा, फिर शोर मचाने के अलावा आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। अब आपको गुस्सा आएगा, अब आप जलाल में आओगे और कहोगे कि मौलाना अब तुम हमारे दोस्तों पे आ गए, अब दोस्तों पे इल्जाम लगा रहे हो। अरे भाई मैं कहाँ इल्जाम लगा रहा हूँ, तेरा दोस्त दूध का धुला है, मगर शैतान तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर उसने हमला कर दिया तो क्या होगा? रास्ता ही मत दो। मजहब इस्लाम बुराई के रास्तों को पहले ही बंद करता चलता है ताकि बुराई जन्म ही न। दोस्ती हजारों से करना, मगर तुम भी उनके ड्राइंग रूम में मत जाना और वो भी तुम्हारे ड्राइंग रूम में ना है, तो दोस्ती भी लंबी चलेगी और कोई बिगाड़ भी
نہیں ہوگا، کیونکہ اچھی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے۔ اب حضرت عمر سرکار کی صحبت میں رہتے تھے تو چہرے کا رنگ واپس آنے لگا، ماتھے کی لکیریں غائب ہونے لگیں۔ پھر عرض کیا رسول اللہ ایک بات اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم پوچھ لیں۔ سرکار نے فرمایا عمر پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ لو۔ تو حضرت عمر نے عرض کیا رسول اللہ جب میرے گھر والے، جب میرے پڑوسی، جب میرے رشتہ دار، جب میرے عزیز و اقارب مجھے تنہا قبر میں چھوڑ کے آ جائیں گے نا، جب وہ منکر نکیر آئیں گے نا، جب وہ سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے نا، تو میرا دل میرے پاس ہوگا یا بدل دیا جائے گا؟ حضرت عمر نے یہ پوچھ لیا تو سرکار نے مسکرا کے ارشاد فرمایا عمر بڑی عجیب سی بات پوچھ لی تم نے، اور سرکار نے مسکرا کے فرمایا تھا، اور سرکار مسکرا دے تو ایسے کہو یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی اور یوں لب کشا ہوئے تو گلستان بنا دیا۔ مسکرا کے ارشاد فرمایا عمر بڑی عجیب بات پوچھ لی تم نے۔ بولے سرکار جیسے کہاں جائیں، کس سے پوچھیں، کس کے دربار پہ استغاثہ پیش کریں؟ آپ بھی تو ہمارے آقا ہو، آپ بھی تو ہمارے داتا ہو، آپ بھی تو ہمارے ماں باپ ہو، آپ بھی تو ہمارے مل جاؤ۔ ہم تو جو سمجھ میں آتا ہے، جو تھاٹ آتی ہے اسے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ اگر صحیح ہے تو فوراً جواب مل جاتا ہے، اور کرپٹ نہیں ہے تو آپ اس سوال کو کرپٹ کرتے ہیں اور پھر جواب عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ کی شان تو بڑی نرالی ہے، یہاں سے لا ملتا ہی نہیں ہے، یہاں نہیں لفظ ہے ہی نہیں، وہاں کیا جود و کرم ہے شاہ پتھا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا۔ یہ وہ دربار ہے کہ یہاں نہیں ہے ہی نہیں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا عمر جب پوچھ ہی لیا ہے تو جواب بھی سن لو۔ اب کی سرکار حکم فرمائے، بولے جسم کا کوئی پارٹ، جسم کا کوئی انگ، جسم کا کوئی عضو، جسم کا کوئی حصہ نہیں بدلا جائے گا، باڈی تو پوری ہوگی قبر میں۔ تو حضرت عمر نے عرض کیا رسول اللہ پھر میری قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا، پھر منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں مجھے کوئی دقت و پریشانی نہیں ہوگی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا عمر بڑے وصوب کے ساتھ کہہ رہے ہو؟ بولے سرکار اپنے بلبوتے پہ کچھ بھی تو نہیں کہہ رہا ہوں۔ بولے پھر؟ بولے اس دل کے بلبوتے پہ کہہ رہا ہوں، یہ دل ہی تو ماسٹر آف باڈی ہے، یہی تو پورا ورک کرتا ہے، تبھی تو باڈی چلتی ہے، اس کی دھڑکن رکتی ہے، باڈی رک جاتی ہے، پورا آدمی ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ بولے سرکار اس دل کے بلبوتے پہ کہہ رہا ہوں۔ بولے مطلب یہ ہے کہ سرکار اس دل میں آپ کی محبت کا چراغ روشن ہے، اس دل میں آپ رہتے ہیں، اور جس دل میں آپ رہتے ہیں وہ دنیا میں بھی بے چین نہیں ہوتا ہے، اور جب وہ قبر میں پہنچتا ہے تو وہ 2 گز زمین جنت کا باغیچہ بنا دی جاتی ہے، اور جب وہ حشر کے میدان میں پہنچے گا تو اس کے ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ عطا کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، نعرہ تکبیر۔ حضرات یہی وجہ تو ہے کہ ایران کے تٹ میں پیدا ہونے والا، گیلان میں پیدا ہونے والا ایک عبدالقادر عشق مصطفیٰ کا جام پیتا ہے تو وہ سے آدم بن جاتا ہے۔ ایک معین الدین ایران کی دھرتی میں پیدا ہونے والا جب وہ عشق مصطفیٰ کا جام پیتا ہے تو دلوں کا راجہ اور خواجہ بن جاتا ہے۔ بریلی کا احمد رضا جب عشق مصطفیٰ پہ قلم اٹھاتا ہے تو وہ دنیا کا اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مشقت کرنی پڑتی ہے، یاد خدا کی بھٹی میں سلگنا پڑتا ہے، تب کہیں انقلاب آتا ہے، ہوا میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، کچھ کرنا پڑتا ہے۔ مطلب دنیا میں رہ کے دنیا کو جوتے کی نوک پہ رکھنا پڑتا ہے جب خدا کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں فقیر بن جاؤ،
झोली डालो और दरवाजे दरवाजे भीख मांगो, है ना? मैं ऐसा सबक नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं, तरक्की करो। इतनी तरक्की कि जब बिजनेस की दुनिया में उतरो तो धीरू भाई अंबानी के दोनों बेटे अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी तुम्हारे सामने घुटने टेक दें तो बोलो भाई अपना क्या बिगड़ता है? अपना तो फायदा है। ये बजाज वाले लोग, ये विजय माल्या जैसे लोग, ये टाटा और बिरला जैसे लोग तुम्हारी बिजनेस के सामने घुटने टेक दें तो मजा ही आ जाएगा। तुम्हें ही बिजनेस करना चाहिए। और तुमने क्या सोचा? तुमने सोचा जब हमने पूछा कि भाई क्या हाल चल रहा है, बोले चल रही है दाल रोटी। बड़े फख्र से कहता, बोले मौल साहब चल रही है दाल रोटी। अबे मुर्गा कौन खाएगा ये तो बता, ये बकरा कौन खाएगा, ये रामलाल खाएगा, तू सिर्फ दाल खाएगा। ये हलाल तेरे लिए किया गया है, ये जायज तेरे लिए किया गया है, और तू दाल पे इत्तेफा करता है। तू गुलाम मुस्तफा है। मैदान के हर फील्ड में उतर और दुनिया को बता कि गुलामान मुस्तफा न मैदान कारदार में पीछे रहते हैं, न बिजनेस के मैदान में पीछे रहते हैं, और जब मस्जिद में पहुंच जाते हैं तो 1000 रकअत पढ़ के भी दम लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत जवाब दिया, सुभान अल्लाह। तरक्की करो, खुदा करे हवाई जहाज की गोद में झूलो, खुदा करे ऐसे बंगले हो आपके पास कि हेलीपैड उस पे ही बनाओ, आपका हेलीकॉप्टर उसी को उतरे। तजूरियां हो आपके पास, फार्म हाउस हो आपके पास, अंबार हो बिजनेस के आपके पास, मगर जब आपकी तजूरियों का मुकाबला, बात मत करो, जब आपके फार्म हाउस का मुकाबला, जब आपके बैंक बैलेंस का मुकाबला, जब आपकी फैक्ट्रियों का मुकाबला मजहब इस्लाम से हो जाए तो उस दिन ईमान की शान लेके आगे बढ़ना और इन्हें जूते की नोक पर मार के ये बताना कि हम दुनिया में तजूरी के लिए नहीं है, दुनिया में दौलत और फार्म हाउस के लिए नहीं है, पार्लियामेंट और असेंबली के लिए नहीं है। मुकाबला करोगे तो ऐलान करेंगे कि हम इस दुनिया में भी मुस्तफा के लिए हैं और आखिरत में भी मुस्तफा के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ये क्यों कह रहा हूं? हवा में नहीं कह रहा हूं, लॉजिक है इसके पीछे, वजह है इसके पीछे कि दुनिया जूते की नोक पे ही अच्छी लगती है। इसकी औकात ये है, इसे जितना जुतिया लो, जितना थपड़ा लो, जितना लठिया लो, इतनी ही ये गुलामी करती है। और जितना इसके पीछे भागोगे तो कुरान ने ऐलान किया, कुरान सुना रहा हूं, कुरान में रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें माल की ज्यादा तलबी ने गाफिल रखा, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए, है ना? तो दुनिया जूते की नोक पे अच्छी लगती है। आप थोड़े सुस्त हो गए हैं, चलो थोड़ी और ऊपर लाओ, और ऊपर ले आए, जेब में आ जा तब भी कोई बुराई नहीं है, मगर दुनिया इससे ऊपर नहीं आना चाहिए। मतलब दुनिया दिल में नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब दुनिया दिल में आती है तो फिरौन बनाती है, जब दुनिया दिल में आती है तो शद्दाद बनता है, जब दुनिया दिल में आती है तो नमरूद बनता है, जब दुनिया दिल में आती है तो हामान बनता है,
جب دنیا دل میں آتی ہے تو کربلا کا یزید بنتا ہے، جب دنیا دل میں آتی ہے تو پھر شمر بنتا ہے، جب دنیا دل میں آتی ہے تو لندن کا بلیئر بنتا ہے، امریکہ کا بش بنتا ہے، اور یہاں کا تو جانے کیا کیا بنتا ہے، مگر جب دل میں مصطفیٰ آتے ہیں تو پھر مدینے کا صدیق اعظم بنتا ہے، عمر فاروق اعظم بنتا ہے، عثمان ذو النورین بنتا ہے، جب دل میں مصطفیٰ آتے ہیں تو پھر حیدر کرار بنتا ہے، جب دل میں مصطفیٰ آتے ہیں تو پھر کربلا کا حسین بنتا ہے، عباس بنتا ہے، جب دل میں مصطفیٰ آتے ہیں تو پھر بغداد کا غوث اعظم بنتا ہے، ہندوستان کا راجہ خواجہ بنتا ہے، کلیر کا چاند بنتا ہے، جب دل میں مصطفیٰ آتے ہیں تو پھر بریلی کا امام احمد رضا خان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں؟ اس کا مطلب آپ کو دنیا میں رہنے کی اجازت ہے، مگر دنیا آپ میں نہ آ جائے اس سے روکا گیا ہے۔ جیسے جب تک کشتی دریا پر رہتی ہے تو اس کنارے سے اس کنارے لے جانے کا کام وہ سب کرتی ہے، اور جب کشتی میں پانی آ جاتا ہے تو بیچ میدان میں لے کے ڈوب جاتی ہے۔ یہ دل دنیا کے لیے نہیں ہے، یہ دل تو مصطفیٰ کے لیے ہے۔ سبحان اللہ ایک شعر سنا دیں اگر اجازت ہو، ارشاد ذرا پیار سے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ میں نے کب کہا چیز ہے؟ سبحان اللہ ایسا سے بولو، سبحان اللہ ارے وہ تو دلوں کے راز جانتا، چیزنے کی ضرورت پیچھے سے زور سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ ارے دل میں ہر دم، سبحان اللہ سبحان اللہ ارے دل میں ہر دم یاد نبی کی شمع جلائے رہتا، سبحان اللہ سبحان اللہ اور ان کا گھر ہے کب آ جائے آنکھیں بچھائے رہتا، سبحان اللہ سبحان اللہ اور جس کو چاہے در پہ بلا لے وہ مختار دو عالم سبحان اللہ سبحان اللہ ارے میں بھی ان کے رحم و کرم پر آس لگائے رہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو حضرات گرامی، یہ اولیاء اللہ کے کارنامے رہے تو انہوں نے کبھی دنیا سے دل نہیں لگایا۔ اپنے غوث اعظم کا تذکرہ کریں، بڑے پیر صاحب کا، سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ ایران میں گیلان ہے ایک جگہ، اسے جیلان بھی کہتے ہیں، اس کی برابر میں ایک گاؤں ہے جسے مجرا کہتے ہیں، جو قصبوں سے سٹا ہوا ہوتا ہے، اس کا نام ہے نیف۔ وہاں پیدا ہوئے تھے، 18 سال تک وہیں رہے۔ 18 سال کی عمر شریف میں آپ ایران کے اس تٹ سے نکل کے بغداد گئے، وہ عراق عرب کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ وہاں آپ نے تعلیم حاصل کی 25 سال کی عمر تک، پھر مجاہدے شروع کی، ہاں؟ اور ان مجاہدوں میں آپ نے 40 سال تک مستقل عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ سبحان اللہ اس کا مطلب مشقت کرنا پڑتی ہے۔ آپ اپنے حجرے میں تھے، ایک بار ایک مرید آیا، دوڑتا ہوا، ہانپتا ہوا، کانپتا ہوا، کہا سرکار ظلم ہو گیا۔ بولے بھی کیا ہو گیا؟ بولے گھر کا مال چوری ہو گیا۔ اب نیند آ رہی ہے آپ؟ نہیں نہیں آ رہی سبحان اللہ نیند نہیں آ رہی ہے اب محنت کر کے جاگ رہا ہے۔ آپ بھی اچھا جیسے آ بھی رہی ہے تو کیا برائی ہے؟ نہیں، برائی کیسے ہوگا؟ فائدہ ہی نہیں۔ بس نیند تو اللہ کی نعمت ہے۔ ایک بار نا حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے خواب کے عالم میں، کیونکہ نبی کا خواب بھی حقیقت ہوتا ہے۔ بے شک
अर्ज कर रहे थे परवरदिगार तू हमें तो सुलाता, तू कभी नहीं सुनता, तू भी थोड़ी देर आराम कर लिया कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैं? परवरदिगार आलम ने हजरत जिब्राइल को भेजा, बोले जिब्रील जाओ जरा मूसा के पास, ये क्या कह रहे हैं। हजरत जिब्रील अमी आ गए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बेदार किया। वो खड़े हुए तो अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत जिब्रील अमी ने उनके दोनों हाथों में पानी की भरी बोतलें दे दी। अल्लाह ने उनमें एक लम्हे के लिए नींद वदियत फरमा दी। सुभान अल्लाह। इस हाथ की पकड़ कमजोर हो गई, बोतल जमीन पे गिर गई, फूट गई, पानी बह गया। गिर गया। इस बोतल का भी यही हाल हुआ। जब नींद आती है ना तो जिस्म काम करना बंद कर देता है। हमने तो अपने बुजुर्गों से सुना है कि नींद ऐसी कर्री चीज का नाम है, जब वो आती है तो टूटी हुई चारपाई पे भी हजारों मच्छरों में भी आ जाते हैं, आ जाते है ना। अब दोनों पानी की भरी बोतलें टूट गई, आसमान की तरफ देखा, निदा आई मुंह से, बस हमने तुम्हें एक लम्हे के लिए नींद वदियत कर दी तो तुम 2 बोतलें नहीं संभाल सके। अगर हम सो जाएंगे तो इस कायनात को कौन संभालेगा। सुभान अल्लाह। पीछे से बोलिए मतलब के सुभान अल्लाह। मुझे छेड़ना मत, मुंह में बहुत जोर है मेरे, कई रातें चाहिए, मैं समेट रहा हूँ अपनी बात। सोचो कि वो हमारा परवरदिगार कितना और रहीम और बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे इस दुनिया में कितने कीड़े, कितने मकोड़े, कितने चरिंद, कितने परिंद, कितने तरिंद, कितने हवाओं में, फजाओं में, खलाओं में उड़ने वाले परिंदे, कौन उनकी गिनती करे। कितने समंदर में रहने वाले जीव जंतु, कितने पहाड़ों में रहने वाले कीड़े मकोड़े, कितने ऑस्ट्रेलियन, कितने अमेरिकन, कितने यूरोपियन, किस तरीके की नबातात। मेरा परवरदिगार की ये शान है कि एक वक्त उनकी हिफाजत भी फरमाता है, उन्हें रोटी भी अता करता है। ये रब की शान है। वो अगर सो जाएगा तो निदामे दुनिया दरम भरम हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, तो थोड़ी देर बाद सो जाओ, बेशक। अभी कैसे अच्छा जैसे सो जाओ, मगर मेरी एक बात सुन के सो जाओ। सुना है गुजरे हुए जमाने में खरगोश सो गया था तो कछुए से बादी बोलो हार गया था। क्यों? इसलिए कि सो गया था। मैं तुमसे गुजारिश कर रहा हूँ, तुम जागोगे तभी विश्व जागेगा। बेशक बेशक, हक है। तुम सो गए तो दुनिया सो गए, बेशक हक। और तुम सो गए जब जागोगे तो बगैर तलवार के इनकलाब आ जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। क्योंकि हमारा दारोमदार तलवार पे नहीं है, हमारा दारोमदार गुलामी है मुस्तफा पर है। सुभान अल्लाह, थोड़ी देर और जाग के झेल लो मुझे। सुभान अल्लाह। मैं बड़ा दुखी हूँ, बहुत तकलीफ है मुझे। जल से मुसीबत बना, जलसा ज्यादा से ज्यादा 1.5 या 2 घंटे चलना चाहिए, सारी रात नहीं चलना चाहिए। आदमी को परेशान करने की, मजहब इस्लाम आदमी को परेशान करने के लिए नहीं आया है। अरे नमाज में लंबी जब जमात हो तो लंबी तिलावत करने की इजाजत नहीं दी मजहब इस्लाम है। और जिस नमाज के बाद सुन्नत और नवाफिल पढ़ना हो तो लंबी दुआ मांगने की इजाजत नहीं देता मजहब इस्लाम में। है तो वो रात भर जगह के जलसे कराने की इजाजत देगा? नहीं, मुख्तसर करो ताकि आसानी से सुन सको, और सुनोगे तो फिर समझोगे, और समझ में आएगी तो याद हो जाएगी, और याद हो जाएगी तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अपने हुजरा पाक में थे आप, मुरीद ने आके क्या कहा? बोले माल चोरी हो गया। आपने बरजस्ता फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात कब कही जाती है? खुशी के मौके पर। गम के मौके पे क्या पढ़ा जाता है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। मुरीद कुछ कह नहीं सकता, जब ढूंढ रहा था मगर वापस चला गया, और फिर 2 घंटे बाद आया।
कहा हुजूर काम हो गया। बोले क्या? बोले पकड़े गए चोर, माल घर पहुंच गया। आपने फिर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो कब माल मिल गया था तो थोड़े चौड़े थे वो मुरीद साहब। बोले सरकार अर्ज करूं गुस्ताखी माफ हो तो? बोले बोल क्या कहता है? बोले जैसे ये वाली अल्हम्दुलिल्लाह तो आसानी से समझ में आ गई, मगर वो 2 घंटे पहले वाली अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी गले में अटकी हुई है, नीचे उतरने को तैयार नहीं है। आपने बड़े प्यार से इरशाद फरमाया, चल यार जा, अल्लाह अल्लाह कर, ये अंदर की बातें हैं खुद समझ में आ जाती हैं। तो अर्ज किया हुजूर वो तो देर में समझ में आएगी, जब तक तो दम घुटने लगेगा, और फिर आप जब मौजूद हैं तो फिर आपके दरबार से तो फौरन ही अता हो जाता है। और बरेली की जबान में कहो तो इस अंदाज से कहो, जो तुमसे न मांगे तो फिर किससे मांगे। अब तो बोलो सुभान अल्लाह। जो तुमसे न मांगे तो फिर किससे मांगे, कोई और भी है गलियों से आदम। और तेरे जद को मालिक किया तेरे रब ने, तेरे दर से दुनिया पलियों से आदम। अरे बोले अब तू समझ नहीं चाह रहा तो समझ, जरा दिल की आंखें खोल। बोले हुजूर मैं तो हमतन गोश हूँ, हाजिर हूँ, पूरा बदन मैंने अपने कान बना दिए। हुक्म फरमाया। आपने फरमाया जब तूने मुझसे आके कहा कि दुनिया चली गई, यानी माल चला गया, तो मैंने अपने दिल से पूछा कि अब्दुल कादिर के दिल बोल, दुनिया जाने का तेरे ऊपर कितना असर पड़ा। अंदर से फौरन आवाज आई, बोले यहाँ कोई असर नहीं पड़ा है, यहाँ तो जैसे पहले यादें खुदा में थे अब भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। तो मेरी जबान से निकल गया अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे दिल पे दुनिया का कोई असर। बोलो हुजूर ये तो आसानी से समझा दिया आपने, मगर ये बात वाली रपट गई ओए दे इसके कान पे। मस्जिद का गेट छोड़, वहाँ उठ के आ जाओ। वैसे बच्चों का आना भी जरूरी है। एक रिवायत में है कि जिस दिन मस्जिद की पिछली सफों से बच्चों की आने वाली आवाज बंद हो गई, समझ लेना तुम्हारा आने वाला वक्त अंधा हो गया, तुम्हारा फ्यूचर डार्क हो गया, तुम्हारा मुस्तकबिल तारीख हो गया। इसलिए कि ये आएंगे कुछ दिन शोर मचाएंगे, उसके बाद सीख लेंगे, सीखेंगे तो नमाजी बन जाएंगे, और आएंगे नहीं तो इन्हें क्या पता। इसीलिए बच्चों की शैतानी पर सिर्फ डांटने और समझाने की इजाजत है, मारने की इजाजत नहीं। तो बोले हजरत ये बात वाली रपट गई फिर। अरे बोले यही तो मुश्किल मरहला है, जो तेरी समझ में आ गई थी, यही मुश्किल मरहला है। जब इंसान को दुनिया मिल जाती है तभी तो जानवर बनता है। दौलत आ गई, अब उसे किसी गरीब की आह सुनाई नहीं देती, अब उसे मस्जिद की अजान पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये दुनिया आदमी को बिगाड़ी देती है। ये कबीरदास ने भी एक दोहे में कहा था, उसने कहा था कि कनक कनक ते 100 गुनी, अरे माधक दाधिकाए, और याए खाए बोराए जगतवाए पाए बोराए। कनक सोने को कहते हैं, कनक धतूरे को भी कहते हैं। धतूरे में नशा होता है, उसे खा ले तो बोर आ जाए, और जब दुनिया का अंबार लग जाए तो फिर उन्हें जमाना बन जाए। ये तो मुश्किल काम है। मुसीबत में तो सभी खुदा को याद कर लेते,
कोरोना आया, चीख पड़े। हालांकि मैं ये कसम खा के कह सकता हूँ कोरोना कोई बीमारी नहीं थी, ये एक वर्ल्ड का कोल्ड वार था जो सोची समझी स्कीम थी लोगों को तबाह करने की। बेशक किसी को कोरोना हुआ वो घर में रहा सही, अस्पताल पहुंच गया, उड़ गया, उड़ा दिया लोगों ने, है ना? नहीं थी, ये सब सोची समझी वर्ल्ड की स्कीम थी और इसने बड़े नुकसान किए। मैं तो अब कभी कभी उनके दरमियान में ये कहता हूँ कि वो कीड़ा आया था जो तुम्हें चमका नहीं, वो तो मैं उड़ा गया, अल्लाह ने कभी चमकने वाला कीड़ा भेज दिया तो क्या? और सुना ट्रेवलिंग भी नहीं कर पाता था, तो पूरी दुनिया को हिला के रख गया। और वो दिखाता है ना अपनी निशानी, एक मच्छर भेजा था, वो भी लंगड़ा लूला सा था, 400 साल के बादशाह को 400 साल तक चप्पल लगवाई, चप्पल है, देख लो, क्योंकि एक हद मुकर्रर किया ना अल्लाह करे, चलो आप नींद में हो, मैं समेट रहा हूँ। बोले यही तो मुश्किल मरहला है, तू इसे समझ गया है? दुख में सभी याद कर लेते हैं, अगर सुख में भी रब को याद करते रहे तो दुख ही नहीं होगा, फिर दुख भी रहमत बन जाते हैं। और ऐसी रहमत कि करबला देख लो, पानी नहीं है, बोलो बच्चे शहीद हो रहे हैं मगर फिर भी सीना तान के खड़े हैं, पानी नहीं है, परवाह नहीं है। सबसे बड़ी शान ये है कि हमारे पास गुलामी मुस्तफा का ताज है। तो वो कबीर दास का दोहा और सुना के बात खत्म करूं। कबीर दास ने कहा कि दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे न कोई, अरे दुख में सुख में सुमरन सब करे तो दुख काहे को, हर वक्त रब को याद कर। तो गौसे आज़म ने फरमाया कि जब तूने मुझसे कहा माल मिल गया, तो मैंने फिर अपने दिल से पूछा कि दुनिया मिलने की खुशी में कहीं एक्स्ट्रा तो नहीं उछलने लगा। फिर अंदर से पिछली वाली आवाज आई, न दुनिया जाने का गम था न दुनिया मिलने की खुशी है, यहाँ तो खुशी भी इस्लाम में है और गम भी इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि हम तो खुदा के बंदे हैं, हम तो इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है मेरे भाई। आखिरी शेर एक कह रहा हूँ, बात खत्म कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह बोल दो आप। सुभान अल्लाह। जिंदगी आमद बराए बंदगी, और जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। रब की बंदगी अगर है तो ताबूती ताकत तुम्हारे सामने घुटना न टेक दे तो फिर बात ही क्या है। सुभान अल्लाह। बात हो गई जो हमने आपसे कही, बहुत हो गया। ये सूफी साहब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बैठे हुए तो कुछ जरा दमदार से लग रहे थे, चले तो लगा कि कोई तो उसमें तिली पे कपड़े टांगे हुए जा रहा है, मगर बात जिस्म की नहीं होती है, बात हौसलों की होती है। परवाज परों से नहीं की जाती है, परवाज मुमिन की हौसलों से होती है। इनका कारनामा मैं मुझसे इन्हीं ने राब्ता किया और हमारे मामा बैठे हुए हैं सामने, अल्लाह ने और दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। सय्यद कौम मिल्लत अल्लाह ताला इनकी शान और बुलंद फरमाए। इनके जरिए फोन हुआ और मैं हाजिर हुआ। मेरे भाइयों, इनका आप साथ दीजिए तो ये आपका एहसान नहीं है, ये इनका एहसान है कि वो आपको दीन की तरफ बुला रहे हैं। इस जमाने में आदमी दुनिया की तरफ तो बुलाता है, मगर दीन की तरफ बुलाने वाले गिने चुने लोग होते हैं। हमें चाहिए कि उनका दिल की गहराइयों से साथ हैं
دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم پر مخصوص توجہ کریں، اپنی قوم کے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں۔ ابھی ایک تحقیق ہوئی ہے کہ ہندوستان میں قوم مسلم 53% بالکل ان پڑھ ہے۔ بالکل صحیح بات بالکل ان پڑھ 53%، جس کے پروردگار نے قرآن کا پہلا حرف جو نازل فرمایا وہ اقرا ہے، اس کا مطلب ہے پڑھو۔ رب نے حکم دیا پڑھنے کا، ہم پڑھ، اور بچے 47%، تو 47 میں 20% ایسے ہیں جنہوں نے انٹر تک کیا ہے، اور انٹر کے بعد پوچھا کہ بھئی پڑھائی کیوں چھوڑ دی، بولے ساتھی نے چھوڑ دی۔ دوسرا بہانہ یہ ہے کہ گھر کے حالات صحیح نہیں تھے، ہے نا، ہم نے لوگوں کو مزدوری کر کے پڑھتے ہوئے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہوئے دیکھا ہے، بے شک سبحان اللہ بے شک ہے نا، حوصلہ چاہیے نا۔ اور 20% رہتے ہیں جنہوں نے بی اے میں کر لیا، بچے 7%، تو 7% ہی ہائر ایجوکیٹڈ ہیں، ویل ایجوکیٹڈ ہیں، جیسے آئی ایس ہیں، آئی پی ایس ہیں، پی سی ایس ہیں، پی سی ایس جے ہیں، آئی آئی ٹی ہیں، بے شک جبکہ ہمیں 100 کے 100% پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ ہونا چاہیے۔ تو میں گزارش کر کے جا رہا ہوں کہ یہ نسل جو ہے یہ تو ہمارا مستقبل ہے، بے شک ہم تو پکے ہوئے آم ہیں، کبھی بھی چو سکتے ہیں، ہے نا، مگر ان پہ توجہ کر لو، انہیں دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ کرو، اور 1 گھنٹہ اسی میں سے نکال کے ان کی گھٹی میں اسلام بھی پیوست کرو، تاکہ یہ اعلیٰ افسر بننے کے بعد بھی انہیں خیال رہے کہ میں ڈی ایم بعد میں ہوں، پہلے غلام مصطفیٰ ہوں، بے شک میں ایس ایس پی بعد میں ہوں، پہلے میں غلام مصطفیٰ، ہے نا۔ تو ہاتھ میں دامن مصطفیٰ رہنا چاہیے، تبھی کام بنے گا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض جاری رہے، ان کے صرف اس سے سن کر کام نہیں چلے گا، بلکہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر کام چلے گا۔ کہنے کو تو بہت کچھ ہے، اگر ہم کہنے پہ آئیں دیکھو یہی اچھا ہے کہ ہم کچھ نہیں کہیں۔ اب صوفی صاحب نے یہ جلسہ کرایا، بیچاروں نے جد و جہد کی، اور ان سے لوگوں نے وعدے بھی کیے، اور وعدہ کچھ لوگوں نے نہیں نبھایا، اکثر نے نبھایا، تو ان کے اس پروگرام میں کچھ کمیاں بیچاروں کے ہیں۔ اگر آپ کا حوصلہ بن جائے، مجھے چندہ کرنا تو آتا نہیں ہے، اصل میں بھیک مانگنے کا طریقہ مجھے معلوم نہیں ہے نا، آپ سے صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ اگر کچھ ہو سکے تو ان کی مدد کریں، ہے نا، تاکہ ان کا حوصلہ بنے اور آگے بھی دین کا کام کیا جا سکے، کیونکہ جب حوصلہ ٹوٹتا ہے نا تو آدمی کو پھر گھٹنے ٹکتے ہیں، ہے نا، تو جس سے جو ہو سکے وہ صوفی صاحب کی مدد کر دو۔